So hello everyone. Today I am going to discuss another method of integration, that is integration by partial fractions. Already I have discussed integration by substitution method, and I also discussed the integration by parts. The third one is integration by partial fractions. ये partial fraction method से कैसे integrate करना है integrand को, okay? So इसके लिए थोड़ा सा रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन, ये सब क्या है वो पहले एक बार रिकॉल कर लेता हूँ. व्हाट इज रेशनल नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर. तो रेशनल फंक्शन क्या है? रेशनल फंक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स in the form px by qx. Rational number is p by q where q is not equal to 0, and rational function means px by qx form where px and qx are polynomials in x, okay, such that qx is not equal to 0. जैसे रेशनल नंबर में भी q नॉट इक्वल टू 0 होता है. ऑफ कोर्स इफ डिनोमिनेटर विल बी 0 देन इट विल बी अनडिफाइंड, राइट? सो इसीलिए qx नॉट इक्वल टू 0 होना है, ठीक है? सो दिस इज रेशनल फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल फंक्शन. ओके, मैं क्यों यहाँ पे रेशनल फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ? एक्चुअली टॉपिक तो पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें यूज होगा रेशनल फंक्शन, प्रोपर इम्प्रोपर फ्रैक्शन. ओके, सो इफ द डिग्री मीन्स पावर, लाइन बाय लाइन देखना है ठीक से. ओके, इफ द डिग्री ऑफ p of x means the numerator part, yes. If the degree of p of x is less than the degree of q of x means the denominator, p of x means the numerator. So if the degree of the numerator is less than the degree of the denominator, then the rational function is called proper. Proper improper जो है उसके बारे में बोल रहा हूँ. Then the rational function is called proper. Otherwise it is called improper. So otherwise means if ये just उल्टा हो जाएगा, opposite हो जाएगा. If the degree of p of x is more than the degree of q of x, that means it will be improper. Okay? अच्छा, in case of, ये part ठीक से देखना है. In case of improper rational function, it is a rational function. Yes, proper भी हो सकता है, improper भी हो सकता है. Proper कब होगा? If the degree of p of x is less than the degree of q of x, then the rational function will be proper. If the degree of p of x is more than the degree of q of x, then the rational function will be improper. Now in case of improper rational function, we have to convert it into proper by using long division method. Yes, बिफोर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने से पहले रेशनल फंक्शन को देखना पड़ेगा वेदर इट इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर. इफ इट इज इम्प्रॉपर देन यू हैव टू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर. ओके, प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद, दैट मीन्स देखो कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. दैट इज p of x by q of x. इफ इट इज इम्प्रॉपर देन p of x by q of x इज इक्वल टू t of x प्लस p डैश ऑफ x बाई q ऑफ x. अभी यहाँ पे p डैश ऑफ x कहाँ से आ गया देख लो. दिस इज वेयर t ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल इन x and p dash of x by q of x is a proper rational function. Now this part will be proper. ठीक है? अभी ये एक्सप्रेशन कैसे आया? tx प्लस पी डैश ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स, कैसे इसको लेके आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल नो 3/2 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो इफ 3/2 इज इम्प्रॉपर, हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू प्रॉपर? देखो कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करना है. So 1 of 1/2, that means it can be written as 1 plus 1/2 or not? Yes or not? So 1 plus 1/2, वही तो लिखा t of x plus p dash of x by q of x. This is t of x. कंपेयर करो, t of x is
this one. Here t of x is 1 according to my example. What is p dash of x? p of x था लेकिन मैं p dash of x क्यों लिखा? The reason is here the value of p dash of x is 1 but actual p of x is 3. इसको डिवाइड करने के बाद ही ये मिला 1. And what about denominator? Denominator is q of x only ना, because q of x में भी 2 था तो ये भी 2 है, तो q of x तो q dash of x नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ p of x के जगह में p dash of x लिखना पड़ेगा. Okay? Then only we can say that p dash of x by q of x is proper and t of x is a polynomial in x. ये तो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए रेशनल नंबर जो इम्प्रॉपर में है, इसको मैं प्रॉपर में लेके आया. कैसे लेके आया? दिस इज ऑल्सो लॉन्ग, दिस इज लॉन्ग डिविजन मेथड ओनली. ठीक है, नाउ वी कैन से दैट दिस इज प्रॉपर ना 1/2. सो हियर आल्सो आई हैव रिटन p dash of x by q of x is a proper rational function. ठीक है, ये नोट्स ठीक से बना के रखना है. ठीक है, ये पूरा नोट्स ठीक से बना के रखना है. Along with that, I have written now one table, one chart, जो कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में यूज होगा. अभी देखो क्या लिखा मैं यहाँ पे हेडिंग, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, मतलब रेशनल फंक्शन कैसा फॉर्म में होना है, और फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, हम लोग को कैसे पार्शियली इंटीग्रेट करना है. ये टेबल का मीनिंग क्या है? ऐसा फॉर्म में इंटीग्रेंड दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटीग्रेंड, और हम लोगों को कैसे पार्शियली सॉल्व करना है, ये फॉर्म में. ठीक है, दिस पार्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस पार्ट यू हैव टू अरेंज बाय योर ओन. Form of the partial fraction you have to arrange by your own, this column, second column, whereas the first column will be given in the question. तो ये फॉर्मेट को देख के ये पार्शियली मतलब सेपरेटली सॉल्व करना है. कैसे? इफ अगर फॉर्म ऐसा हुआ, नंबर 1, अगर इंटीग्रेंड ऐसा फॉर्म में होगा तो px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. जनरली पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन में हमेशा डिनोमिनेटर को देखना चाहिए. बेस्ड ऑन द डिनोमिनेटर ओनली यू कैन अरेंज द पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट. समझ में आया? डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा. सो इफ द इंटीग्रेंड इज ऑफ द फॉर्म px प्लस क्यू बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, देन यू हैव टू solve partially by using this method. That means you have to consider a by x minus a प्लस b बाई एक्स माइनस बी. अभी यहाँ पे माइनस के जगह में प्लस भी दे सकता है, सेम प्रोसेस. माइनस है तो माइनस साइन यूज करो, प्लस है तो प्लस साइन यूज करना है. ठीक है, अभी पूछ सकते हो कि ए और बी का है, क्या है? दिस कैपिटल लेटर ए एंड बी आर नथिंग बट रियल नंबर्स विच आर अननोन. यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस ए एंड बी. ओके, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ओके, ए बी आर रियल नंबर्स. Second point is, if the integrand is of the form px plus q by x minus a whole square, then a by x minus a plus b by x minus a whole square. ये फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, ये खुद के ऊपर, इसीलिए ये टेबल याद रखना पड़ेगा. ओके, थर्ड वन, if the integrand is of the form px square plus qx plus r by x minus a into x minus b by x minus c, में क्या बोला था? सिर्फ डिनोमिनेटर को देखो, x minus a, x minus b, x minus a. So then you have to consider a by x minus a plus b by x minus b plus c by x minus c, where capital letter A, B and C are real numbers which are unknown. You have to find the values of A, B and C. The fourth one, px square plus qx plus r by x minus a whole square into x minus b. So a by x minus a प्लस बी बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस बी. फॉर्मेट को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये याद रखना ये टेबल. ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाई, डिनोमिनेटर देखना है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. देन यू हैव टू कंसिडर ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. दिस इज नॉट लाइक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नंबर 4. bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? ऑफ कोर्स वी नो इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बट दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड.
Okay, this quadratic expression cannot be factorized. So this table you have to by heart. और ये जो मैं notes दिया, ये notes याद रखना पड़ेगा, मतलब बना लो, ठीक है. Now I am going to discuss some numericals based on integration by partial fractions.